بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول چہارم، پارٹ نمبر 21۔ سوال: اس کے بعد آپ دہلی کیوں چلے گئے؟ جواب: شہر کا ماحول میری وجہ سے گرم ہو گیا۔ شہر میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے۔ 1947 کے بعد تو پورا ہریانہ اجڑ گیا۔ یہاں بھی مسلمان لوگ ہندوؤں کی طرح رہتے تھے، نام بھی ہندوؤں جیسے۔ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ایک ذمہ دار شخص ہیں جن کا نام دھرما ہے، ایک انوپ سنگھ ہیں۔ سبھی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ سونی پت کیا، حضرت مولانا کلیم صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، مگر میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سوال میں کبھی اپنے پتا جی سے بھی نہیں کرتا تھا۔ ان سے اپنے دل کی بات کہی۔ انہوں نے ایک اسکول میں ہندی پڑھانے کے لیے مجھے فرید آباد بھیج دیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں سارے بت اور خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میں سوال بھی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ میرے اللہ نے میرا امتحان بھی بار بار لیا اور مجھے سمجھداری دے دی، استقامت سے نوازا، مجھے پار اتارا۔ میں اپنی ماں بہن کو دہلی لے آیا، اپنا مکان بیچ کر دہلی میں چھوٹا سا مکان خرید لیا۔ وہاں پیسے بھی اللہ نے تھوڑے تھوڑے سے ادا کر دیے۔ ہر موڑ پر میرے اللہ نے میری مدد کی۔ سوال: کوئی خاص واقعہ بتائیے۔ جواب: ایک بار میں نے ایک دکان پر نوکری کی۔ پہلے مہینے کی تنخواہ ملی تو مکان کے 25 روپے کی ایک قسط باقی تھی۔ اس نے تقاضا کیا، شرم کی وجہ سے میں پوری تنخواہ اس کو دے چکا۔ گھر میں ماں سامان کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی روز تک ان کو کل پر ٹالتا رہا۔ ایک روز گھر میں کھانا نہیں بنا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ میرے اللہ، آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ میں مسجد سے نکلا، جوتوں کے سامنے ایک نوٹ 500 روپے کا پڑا ملا۔ میں بہت خوش ہوا، جلدی سے نوٹ اٹھایا اور خیال کیا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ نوٹ جیب میں رکھا، دکان کی طرف گیا تاکہ کچھ آٹا وغیرہ خریدوں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ نوٹ تو کسی کا گرا ہوگا، نہ جانے یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ میں دکان کے بجائے مولانا صاحب کے پاس گیا۔ مولانا صاحب کو اپنا حال بتائے بغیر نوٹ ملنے کا واقعہ بتایا۔ امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ اس نوٹ کا اعلان مسجد میں کرنا چاہیے، آپ کے لیے یہ نوٹ لینا جائز نہیں ہے۔ میں نے نوٹ امام صاحب کے حوالے کیا اور گھر واپس آیا۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی توفیق ہوئی، اور دل بھی دکھا کہ ماں انتظار میں ہے۔ رات کے 11 بجے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا، محلہ کے ایک حاجی صاحب کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مغربی دہلی سے آئے ہوئے تھے، مغرب کے وقت سے مختلف محلوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا کڑھائی کا ایک کارخانہ ہے، میرا بیٹا اس کو چلاتا تھا، اس نے شارجہ میں کمپیوٹرائزڈ مشین لگا لی ہے، اب اس کارخانے کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ علاقہ کے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ نے کارخانہ میں مینیجر کی حیثیت سے کام کیا ہے، میں آپ کو مینیجر رکھنا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے 5000 روپے ماہانہ دوں گا، اس کے بعد تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ ہمارے علاقے کے لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور جیب سے 5000 کی ایک گڈی نکال کر دی۔ یہ ایڈوانس تنخواہ اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو ایڈوانس مل جایا کرے گی۔ میں نے اس کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھا۔ معاملہ طے ہو گیا۔ رات کو ہوٹل سے کھانا لایا، ماں اور بہن کے ساتھ خوشی کھایا۔ 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھی۔ میرے اللہ نے 500 روپے ناجائز سے بچایا اور اتنی ہمت دی اور 500 روپے کی بجائے 5000 روپے عطا کیے۔ بارہا میرے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ سوال: آپ دعوت کا کام کرتے ہیں؟ جواب: الحمدللہ، حضرت مولانا کلیم صاحب کی رہنمائی میں زندگی کا مقصد دعوت کو سمجھتا ہوں۔ میرے اللہ نے دہلی اور ہریانہ میں 50 لوگوں کی ہدایت کا اس گندے کو ذریعہ بنایا۔ اس کے علاوہ مقامی کام کی تبلیغی ترتیب سے جڑا ہوں اور سالانہ چلہ پابندی سے لگاتا ہوں۔ سوال: آپ ارمغان کے واسطے سے مسلمانوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جواب: میں کیا حیثیت، میری دل چاہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی مجھ جیسے شکستہ دلوں پر ترس کھائیں۔ کتنے لوگ صرف راہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر کریں۔ دوسری ایک ضروری بات نو مسلموں کے بارے میں عرض ہے کہ ان کی زیست کی فکر کریں، ان کو اپنا محتاج بنانے کی بجائے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی فکر کریں، ان میں خودداری اور استغنا پیدا کرنے کی فکر کریں۔ سارے خداؤں سے بچ کر جو ایک مالک پر ایمان لایا ہے، اس کو سوال کسی سے کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ عموماً لوگ اس کی مدد کر کے صدقہ دے کر ان کی عادت بگاڑتے ہیں، اس سے ضمیر مر جاتا ہے۔ خود تو ان کے ساتھ تعاون کرنا اپنا فرض سمجھے، مگر اس کو ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میرا کھانا، شادی اور گزارا، ان سب کا نظم مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ میرے لحاظ سے یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ سوال: بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے بڑے کام کی اور مفید باتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب: میں نے تو حقیقت حال بیان کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، ستمبر 2003۔ ایک نو مسلم بھائی عبدالرشید دوستم سنیت کمار سوریا ونشی سے مفید ملاقات۔ اب احمد عباس: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرشید: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: آپ کی تعریف۔ جواب: میرا نام عبدالرشید دوستم ہے
اور میں الحمدللہ ایک مسلمان ہوں۔ میں اب سے 6 سال قبل مسلمان ہوا تھا۔ میرا پرانا نیم سنیت کمار سوریہ ونشی تھا۔ میں ہری دوار کے قریب ایک گاؤں کے ہندو مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میں نے سائنس بایو سائڈ سے گریجویشن کیا ہے۔ سوال: آپ کا نام عبدالرشید دوستم کس نے رکھا؟ جواب: اصل میں میرا نام مولانا محمد اسلم کاظمی نے عبدالرشید رکھا تھا، مگر میں کچہری میں سرٹیفکیٹ بنوانے گیا تو اس زمانہ میں افغانستان کے عبدالرشید دوستم کا پوری دنیا میں تذکرہ تھا۔ وکیل نے مجھ سے نام پوچھا تو میں نے عبدالرشید بتایا۔ اس نے کہا عبدالرشید دوستم، تو میں نے بھی عبدالرشید دوستم ہی کہہ دیا کہ دوستی تو اچھی ہی چیز ہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتائیے۔ جواب: میں گروکل میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ گروکل بہت مذہبی ہندوؤں کے ادارے ہوتے ہیں۔ میں کھیلنے اور پڑھنے میں ہوشیار تھا، اسکول کے ہر فنکشن میں حصہ لیتا تھا، پوزیشن لاتا تھا۔ میں بہت اچھا بریک ڈانس کرتا تھا۔ بریک ڈانس کے لیے جوڑوں کی ایک خاص طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ نے مجھے دے دی تھی۔ ممبئی کی کئی پارٹیاں مجھے لینے آئیں۔ آپ بریک ڈانس میں دنیا میں نام پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے جوڑوں میں گھومنے کی بہت صلاحیت ہے۔ ہمارے گاؤں میں مندر اور مسجد بہت قریب قریب ہیں۔ مجھے بچپن سے یہی خیال ہوتا تھا کہ یہ دونوں مالک کی پوجا کے استان ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دنوں ہمارے گاؤں کے ایک بہت سلیم الفطرت اور نیک انسان محمد عمر بھائی سے میرا تعلق ہو گیا۔ وہ مجھے ناچنے کے لیے منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جس اللہ نے اتنے اچھے جوڑ بنائے ہیں وہ اللہ ناچنے سے منع کرتا ہے، وہ ان جوڑوں کا حساب لے گا۔ وہ میرے لیے ہدایت کی دعا کرتے، مجھے مسجد میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے۔ میں مسجد میں باہر کھڑا ہو کر پانچوں وقت لوگوں کو پابندی سے نماز پڑھتے دیکھتا۔ سردی، گرمی، برسات میں ایسے نظم اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو دیکھ کر مجھے اچھا لگتا۔ مندر میں جا کر یہ بات نہیں لگتی تھی، دل کو لگتا کہ مندر میں تو بس ایک رسم ہے۔ مجھے حسرت ہوتی کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو میں بھی مسجد میں جا کر اپنے مالک کی نماز پڑھتا۔ محمد عمر بھائی مجھے ایک بار دیوبند دکھانے کے لیے لے گئے۔ وہاں ہم مولانا محمد اسلم کاظمی کے پاس عطر لینے گئے۔ میں نے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کیے۔ وہ ایک اچھے دائی ہیں، انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا اور توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں سمجھایا اور زور دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ مسلمان ہو کر نماز پڑھنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے روز انہوں نے مجھے پھلت حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی کے پاس بھیج دیا، جن کو ہم ابو جی کہتے ہیں۔ سوال: اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا؟ جواب: میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اس خیال سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے اس گندگی سے نکالا اور شرک سے بچایا، ورنہ کھیل کود، تعلیم، ڈانس میری دلچسپی کے سب سامان مجھے ملے تھے۔ میں نے ریڈیو پرو گروپ سانگ بھی گائے۔ نجیب آباد ریڈیو سے آج بھی ریلے ہوتے ہیں۔ ایک گانا جو اب سے بہت پہلے گایا تھا وہ مجھے اب تک یاد ہے، آؤ مل کر اتحاد رچائیں۔ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے عمر بھائی اور پھر مولانا اسلم صاحب اور سب سے بڑھ کر ابو جی کے پاس بھیجا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح پھول کی فطرت کھلنا ہے مگر پھول کو پانی نہ ملے، بارش نہ ہو تو وہ مرجھا جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کی فطرت مسلمان ہونا ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے مگر اس کو ماحول اور دعوت کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کو خاندانی طور پر اسلامی ماحول یا دعوت کی بارش نہ ملے تو وہ کھلنے سے پہلے مرجھا کر کافر رہ جاتا ہے۔ میں اپنے کریم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے مرجھانے سے بچایا۔ سوال: اسلام لانے کے بعد آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا؟ جواب: اصل میں اگر انسان صرف اللہ سے اپنا تعلق رکھے تو ہر وقت اس کا کرم شامل حال رہتا ہے، مگر انسان کمزور ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ میں خاص طور پر بہت کمزور و حساس ہوں اور مجھ میں قوت برداشت بہت کم ہے۔ آدمی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ ایمان و اسلام صرف اللہ کے لیے ہو۔ صبح کو سورج نکلا، اگر آدمی یہ خیال کرے کہ یہ سورج نکلا ہے میرے اللہ نے میرے لیے نکالا ہے، یہ دن صرف میرے لیے نکالا گیا ہے، یہ رات میرے آرام کے لیے، یہ ہوا میری راحت کے لیے چل رہی ہے، تو آدمی کو اللہ سے کتنی محبت ہو جائے۔ مگر انسان کمزور ہے، کسی ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں اس کو مشکل ہوتی ہے، نئے معاشرے میں اس کو سیٹ ہوتے دیر تو لگتی ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب حالات ایسے ہیں کہ شک کرنا پڑتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مسلمان بھائیوں کے ان سوالات سے ہوتی رہی جن سے ایک شخص سا ٹپکتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے مجھے بے انتہا محبت کرنے والے ملے، خصوصاً ہمارے ابو جی جنہوں نے ہر موڑ پر میری رہنمائی کی ہے۔ سوال: آپ کے والدین حیات ہیں؟ کیا ان کا آپ کے ساتھ کچھ ربط ہے؟ کبھی آپ نے ان کو بھی اسلام میں لانے کی کوشش کی؟ کچھ ان کا حال بھی سنائیے۔
जवाब: मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। चंद साल कबल अबू जी ने मुझे उनसे मिलने के लिए कहा था और उनकी हिदायत के लिए दुआ करने पर जोर दिया। मैंने फ़ोन पर वालिदा से बात की। उन्होंने मुझे बहन की शादी में आने को कहा। ये भी कहा कि बहन की शादी में 3 भाई शरीक हों और एक ना हो तो वो डोली क्या अर्थी मैयत होगी। हमने बहन की ससुराल वालों से बात कर ली है। उन्होंने इजाज़त दे दी है कि उसने धर्म भ्रष्ट कर लिया और वो अधर्म लामज़हब हो गया। तो हमें क्या? मैं बहन के लिए कुछ तोहफे लेकर गया। मैं शादी में शरीक हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा और सब खुश हुए। मगर शादी के बाद मेरे भाई और रिश्तेदार टहलाने के बाद बहाने से ले गए और जबरदस्ती नाई की दुकान में घुसा दिया और कहा कि इसकी दाढ़ी मोड़ दो। मैं रोता रहा, खुशामद करता रहा, मगर वो ना माने। मैंने हाथ से उस तरह पकड़ा और उनसे कहा कि तुम मेरा गला काट दो, मेरे नबी की सुन्नत ना कटाओ। नाई ने भी उनको मना किया, मगर वो मुझे दबोच कर दाढ़ी मुंडा कर बाज आए। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आया। रोता फिरता था। मुझे आईना देखने का शौक था, मगर मुझे रोना आता था कि मैं अपना मुंह नबी की सुन्नत के बगैर किस तरह देखूं। शर्म की वजह से फुल्त ना आया। अबू जी ने तलाश कराया और कहलवाया कि इसमें शर्म की बात नहीं, तुम्हारे लिए इसमें कोई हर्ज नहीं। तुम दावत की राह में गए थे, तुम्हें एक एक बाल के बदले में नेकियां मिलेंगी। इसके बाद मैं खुलकर घर नहीं गया। अलबत्ता बार बार रात को वालदा से मिलने और अबू जी ने मुझे भेजा। अब वालदा इस्लाम के बहुत करीब हैं और हम सब दुआ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अब की बार वो ज़रूर कलमा पढ़ लेंगी। वो घर में मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, अब और भी करने लगी हैं। इसके बाद वालिद साहब पर काम करूंगा। सवाल: सुना है आजकल आप दावत के लिए बहुत सरगर्म हैं, अपनी दावती कारगुजारी के बारे में भी कुछ बताइए। जवाब: इस्लाम कबूल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीनी तालीम हासिल की। फिर अब्बू जी ने मुझे कंप्यूटर कोर्स कराया और आजकल मुआना में कंप्यूटर लगाकर DTP वर्क कर रहा हूँ। मगर जाहिर है जिंदगी का मकसद तो दावत है। अब्बू जी हमें सफ़र में साथ ले जाते हैं। पूरी इंसानियत तक दावत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये बताते हैं हमारे लिए तेंदुलकर अगर कर और सलमान खान आइडियल नहीं है, हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। हमारे नबी एक एक के पास 70 मरतबा जाते थे। अपने दुश्मन यहूदियों का पाखाना अपने पाकीज़ा हाथों से साफ करते थे। ताइफ में पत्थर खाए पांव लहूलुहान हुए थे। फिर जख्मी हालत में अंगूर के बाग में जाकर अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। आवाज़ लगाते और सताने वालों और पत्थर बरसाने वालों के लिए दुआ करते थे। मुझे भी हसरत है कि मैं भी एक एक के पास 70 मरतबा नहीं तो 7 मरतबा तो जाऊं। मैं भी दावत की राह में जख्मी हूँ और अंगूर का बाग ना मिले तो आम के बाग में अपने मालिक को या अरहमुर राहिमीन कहकर याद करूं और अपने खूनी रिश्ते के भाइयों की हिदायत के लिए दुआ करूं। गुज़िश्ता चंद माह में अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। अबू जी कारगुजारी सुनाते हैं, बहुत खुश होते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह के एक नेक बंदे और दाई को खुश करने का शौक हमारे लिए इस राह में बड़ा हौसला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद माह में 23 लोगों ने इस हकीर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जिनमें बड़े काम के और अहम लोग शामिल हैं। मैं अपने अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है अब हमें लाइन मिल गई है। अल्लाह ताला हमसे खूब काम लेंगे। पहले भी कुछ लोग मुसलमान हो जाते, मगर मैं उनको कलमा नहीं पढ़वाता था। अबू जी ने बताया कि कलमा पढ़वाने के लिए किसी के पास ले जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर मौत आ जाए तो क्या होगा? जब से मैं ही कलमा पढ़वाने लगा। सवाल: अपने मुसलमान भाइयों के आप कोई कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जवाब: मेरी क्या हैसियत है मैं कोई पैगाम दूं, मगर मुझे एहसास होता है कि हमें अपने कुफ्र और शिर्क में पड़े हुए भाइयों की फिक्र करनी चाहिए, खुसूसन पसमानदा तबका के गैर मुस्लिमों की, जिनको शो दरिया काले समझकर नजरअंदाज कर दिया गया है। आप देखते हैं हमारे इलाका में कावड़ का किस कदर जोर बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 3 रोज के लिए रास्ता बंद होता था, अब आधे माह रास्ता बंद रहता है। सब काम बंद हो जाते हैं। किस कदर तकलीफ होती है, तादाद भी कितनी बढ़ रही है। ये सैकड़ों मील गर्मी में कावड़ का सफर पैदल हमारी दुश्मनी में नहीं हो सकता। ये इसलिए है कि लोगों में अपने मजहब से ताल्लुक बढ़ रहा है, यानी अपने मालिक को खुश करने का शऊर और जज्बा बढ़ रहा है। अगर हम दावत को मकसद बनाकर इनको ये समझाएं कि ये रिश्ता मालिक को खुश करने का नहीं बल्कि मालिक को नाराज करने का है, और शिर्क के साथ ये कदम धर्म मजहब के लिए नहीं बल्कि अधर्म गुनाह के लिए बढ़ रहे हैं, तो ये लोग इसी जोश और जज्बा के साथ हज के लिए जाने वाले बन सकते हैं। असल ये है कि हम गैर शऊरी और रस्मी तौर पर मुसलमान हैं। मैं अब्बू जी से कह रहा था कि मुझे 7 साल होने वाले हैं। मैंने 223 निकाहों में शिरकत की, जिनमें से 7 साल में 5 दूल्हा दाढ़ी वाले देखे। इनमें भी सिर्फ 2 पूरी दाढ़ी वाले थे। जब इस्लाम और नबी के तरीका से ताल्लुक का हमारा ये हाल है तो हम दूसरों को किस तरह दावत दें, जब हम खुद ही इस्लामी तरीका को
पसंद नहीं करते। हमारी नमाजों का भी यही हाल है। 10% लोग भी नमाजी नहीं, और जो नमाजी हैं वो भी सारे कामों को मुकद्दम करके दूसरे दर्जा पर नमाज पढ़ते हैं। सवाल, आप माशाअल्लाह नमाज की बड़ी फिक्र रखते हैं, आपका नमाज के बारे में क्या ख्याल है? जवाब, अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज की कशिश में इस्लाम कबूल किया था। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुज़िश्ता 5 साल में मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। कुल मिलाकर मेरी 67 बार जमात निकली। 7 बार 2002 में, 13 बार 2000 में, 16 बार 1999 में, 21 बार और 1998 में सफ़र कम हुए। इस साल 10 बार मेरी जमात निकली, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये जमातें शरई उज़र से निकली हैं। सवाल, आपने हिसाब बिल्कुल याद कर रखा है? जवाब, एक आदमी अपने नफ़ा नुकसान का हिसाब रखता है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जेब और बैंक बैलेंस का हिसाब रखता है कि इतने रुपए हैं, इतनी दुकानें हैं, इतने मकान हैं, दुकान में इतना इतना सामान है वगैरह। मुसलमान का असल माल और दौलत तो ये है कि नमाजों की दुकान और मालो सामान से भी कम अहमियत है। खुसूसन नुकसान तो आदमी को और भी याद रहता है। नमाज कज़ा हो जाना या जमात निकल जाना क्या कम नुकसान है कि आदमी इसका हिसाब भी ना रखे? असल में हमने नमाज की वक़्त और कीमत ही ना जानी, वरना अगर आदमी को नमाज अदा करना बल्कि अब्बू जी के बकौल नमाज कायम करना आ जाए तो पूरी ज़िंदगी बल्कि पूरी दुनिया सही हो जाए। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत मुफीद बातें बताई। जवाब, आप मेरे लिए दुआ करें, ये बातें मेरे लिए हाल बन जाए और अल्लाह ताला मुझे चलता फिरता कुरानी और मुजस्सम में दावत बना दें, और अल्लाह ताला मेरी जान इस राह मोहब्बत में कबूल कर ले कि शहादत की मौत ही ईमान वाले की असल मेराज है। मुस्तफ़ाद अज़माहनामा अरमगान, मार्च 2003। मोहम्मद अकरम विक्रम सिंह से एक दिलचस्प मुलाकात। अहमद अव्वा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकरम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल, अकरम भाई, कारीन अरमगान के लिए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जवाब, ज़रूर अहमद भैया, आप ज़रूर कीजिए। सवाल, आप अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं। जवाब, अब मोहम्मद अकरम है। इस्लाम से पहले मेरा नाम विक्रम सिंह था। मैं मेरठ ज़िला के एक गाँव का, जो अब शहर में आ गया है, रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम श्री तलिक राम है। वो दरमियानी दर्जा के किसान हैं। मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं। मैंने नानक चंद कॉलेज से तारीख में एमए किया था। इसके बाद एलएलबी में दाखिला लिया था। दूसरे साल मेरी ज़िंदगी में कुछ हालात आए जिसकी वजह से मुझे दरमियान में तालीम मौकूफ़ करनी पड़ी। मैंने 2 अक्टूबर 2002 को इस्लाम कबूल किया। सवाल, इस्लाम की तरफ आपकी कशिश की वजह क्या हुई? अपने कबूल इस्लाम के सिलसिला में तफसील से बताइए। जवाब, मेरा बचपन बड़ा अजीब गुजरा। मेरा घराना बड़ा मजहबी हिंदू घराना था। मैं जब ज़रा बड़ा हुआ तो मेरे दिलो दिमाग पर अपने मालिक और अपने खुदा की तलाश का जज्बा तारी हुआ। मैं अकेला बैठा तो मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि सारे संसार का बनाने वाला कौन है, कौन सी ज़ात है जो इतने सारे इंसानों को पैदा करने वाली है, और सारे इंसान बिल्कुल अलग अलग, यहाँ तक कि एक माँ एक बाप की औलाद भी बिल्कुल अलग अलग हैं। कोई कंपनी कार बताती है तो एक सी बनाती है और हमें नंबर प्लेट से पहचानना पड़ता है, मगर इस दुनिया में करोड़ों लोग एक मालिक के बनाए हुए बगैर नंबर प्लेट के पहचाने जाते हैं। ऐसा बनाने वाला कौन है? सूरज निकलता है तो आग बरसती है, चांद चमकता है तो ठंडी होती है। इतना बड़ा आसमान बगैर सतूनों के, बगैर दीवार के किस तरह टिका हुआ है? इसको कौन संभाले हुए है? इंसान का जिस्म, उसकी आंखें, कान, चलने फिरने के लिए पाँव, कैसा प्यारा निज़ाम है। इसको बनाने वाला कैसा अजीम है। किसी इंसान की आंख फूट जाए तो ये डॉक्टर पत्थर की आंख तो लगा सकते हैं, मगर इस जैसी आंख सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर नहीं बना सकते। ये सवालात मुझे अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ से इसके बनाने वाले को तलाश करने पर मजबूर करते। मैंने अपने दिल की तस्कीन के लिए मजहब को सहारा समझा। पहले मैं मंदिरों में जाता था, मगर मैं देखता था कि अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पूछते हैं। मुझे अजीब लगता। मुझे मूर्ति की पूजा करने वालों की अकल पर अफसोस आता। मेरे घर वाले मूर्तियों को खाना खिलाते, इनको सर्दी गर्मी में कपड़ा और हवा का इंतजाम करते। मैं घर वालों से कहता कि तुम इनको खिलाते हो पिलाते हो, मगर इनको जंगल में पकाने के लिए नहीं ले जाते। वो मुझे डांटते और कहते ये तो पागल हो गया है, इसकी अकल को भगवान ने सलब कर लिया है। एक बार मैं अपने छोटे भाई के साथ हरिद्वार की नीलकंठ पहाड़ी पर घूमने गया। मैंने वहां देखा कि मंदिर पर पुलिस की काफी भीड़ है। मैंने लोगों से पूछा यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? उन्होंने जवाब दिया, मंदिर में भगवान शिव जी का सोने का सांप रखा है जो बड़ा भारी और कीमती है। इसकी हिफाजत के लिए पुलिस है, कोई भगवान का सांप चोरी करके ना ले जाए, इसलिए यहाँ हर वक्त पुलिस का पहरा लगा रहता है। ये सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा कि जो शिव जी अपने सांप की हिफाजत ना कर सका हो, वो इन लोगों की क्या हिफाजत करेगा जो खुद अपनी हिफाजत के लिए पुलिस का मोहताज है। वो कैसे पूजा के लायक हो सकता है? मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इन मूर्तियों को हिस्स होती और इनमें जान डाल दी जाए तो ये
खुद हमारी पूजा करें कि हम इनके बनाने वाले हैं और बनाने वाले की पूजा की जाती है। कई बार अखबारों में खबरें पढ़ता कि आज इस मंदिर में भगवान की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई और आज फलां मंदिर से भगवान का त्रिशूल चोरी हो गया। इस तरह की बातों से मेरा दिल मंदिरों से सख्त मुतनफर हो गया और इसके बाद मैंने अपने मजहबी तस्कीन के लिए सत्संग में जाना शुरू किया। मैं सत्संगों में जाने लगा। मैंने वहां देखा कि जब गुरु महाराज प्रवचन करते हैं तो लोगों को कहते हैं कि मुंह माया यानी दुनिया के लालच से दूर रहो, मगर जब कोई उनको 500 का नोट देता तो बहुत खुश हो जाते, जल्दी से जेब में रख लेते, और जब लोग उनको नोट देते उनको पास बिठाते, और जो नोट ना देते तो उनकी तरफ तवज्जो भी ना देते। मेरे दिल में बात आई कि ये कैसा धर्म है, खुद तो माल से प्यार करो और लोगों को दूर रखो। मैंने कुछ गुरुओं के काले करतूतों और जो इन लड़कियों और जवान लड़कियों के साथ उनको मजाक करते भी देखा। मैंने देखा कि गुरु लोगों को वसीयत कर रहे हैं कि उनकी समाधि बनाई जाए, उनको जलाया ना जाए, और लोगों को जलाने से मना नहीं करते। मुझे ऐसा लगता था कि ये अपने दिल में इस्लाम कबूल कर लेते हैं मगर दूसरों को दूर रखते हैं। इन बातों की वजह से मेरा दिल सत्संग से फिर गया। मैंने हिंदू मजहब छोड़कर ईसाइयों की तरफ रुख किया। मैंने वहां भी हजरत ईसा और मरियम की तस्वीरें देखी जिनकी पूजा होती है। खुदा के बेटा कैसा हो सकता है। मैंने ईसाइयों को देखा कि हजरत ईसा की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हालांकि उनका मानना है कि उनको खुद सूली पर चढ़ा दिया गया था। जिस खुदा के लिए खुद खुदा को सूली पर चढ़ा दिया गया हो उसकी पूजा कौन सी अक्ल की बात है। बेटे से प्रार्थना करना की प्रार्थना करें, खुद खुदा से प्रार्थना क्यों नहीं करते। मेरे दिल ईसाइयत की तरफ से भी मायूस हो गया। एक रोज गिरजाघर से दुखे दिल के साथ वापस आया तो रास्ते में मुझे जीनियों के मनियों का एक काफला मिला। 4-5 नंगे लोग बेशर्मी से जा रहे थे। रास्ते में एक जगह उनका स्वागत होना था। जवान लड़कियां उनके नंगे जिस्म को धोकर पानी पी रही थीं। मैं बहुत मायूस हुआ और मेरी आत्मा शर्म के मारे डूब मरने को चाही कि इंसान की बुद्धि अकल इंसान अंधे रिवाजों के सामने कहाँ तक चली जाती है। इस्लाम के दरवाजे पर सारे दरों से मायूस होकर मैंने इस्लाम की खोज शुरू की। मेरे गांव में बहुत से मुसलमान रहते थे। मैंने जैसे जैसे इस्लाम को जानना शुरू किया मेरे दिल ने कहा कि ये प्राकृतिक धर्म फितरी मजहब है। मुझे आखिरत के अकीदा के इल्म ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया। दुनिया की हर चीज फना हो जाने वाली है, अल्लाह के सामने हर चीज का हिसाब देना है। ये बात इंसान को इंसान बाकी रखने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी। इस दुनिया को छोड़कर सबको जाना है और अपने मालिक के सामने इस दुनिया में किए गए कर्मों आमाल का हिसाब देना है। इस मालिक के सामने जाना है जो सारे जहां को बनाने वाला है। सारी दुनिया के लोग इसके बंदे हैं, यहाँ तक कि इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा भी अल्लाह के बंदे और उसके इंसान हैं। मैंने इस्लाम को जानने के लिए कुछ मुसलमान लड़कों से दोस्ती कर ली। मेरे एक दोस्त फारूक की नानी का इंतकाल हो गया। मैं उनके दफन में शरीक हुआ। मैंने कब्र में दफनाने के तरीके को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे हिंदू मजहब के मुताबिक जालमाना तरीके पर जलाने के मुकाबले में ये दफन बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगा। मैं घर जाकर सोया तो मैंने ख्वाब में देखा 2 कब्रें हैं। कुछ अच्छे लोग मुझे दोनों कब्रें खोल कर दिखाने लगे। एक आदमी खूबसूरत कपड़ों में आराम से सो रहा था और दूसरे की कब्र में खून था। लोगों ने बताया कि सोने वाला नेक मुसलमान था और खून पीप वाला बुरा आदमी था। उसके बाद अपने दोस्त की नानी को देखा। वो बहुत खूबसूरत जवान शहजादी सी लग रही थी, हालांकि वो बहुत बूढ़ी और काले रंग की थी। लोगों ने बताया कि ये नानी बहुत नेक थी, इसकी वजह से इनको खूबसूरत बना दिया गया। मेरी आंख खुल गई। इस ख्वाब के बाद मुझे मरने के बाद हालात का आंखों देखी बातों से ज्यादा यकीन हो गया और मुझे रोज अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाई देने लगे। मेरे मुसलमानों के साथ रहने की वजह से मेरे घर वालों को मुझ पर शक होने लगा। उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। मैंने घर वालों से कह दिया कि मुझे मुसलमान होने से अब कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद मुझ गुनाहगार पर मेरे अल्लाह ने एहसान किया। मेरे गांव में 12 अक्टूबर 2002 को अल्लाह के नेक बंदे और इंसानियत के सच्चे दोस्त मौलाना कलीम को भेज दिया। लोग मुझे उनके पास ले गए। उन्होंने मौत के खौफ से देर करना मुनासिब ना समझा और मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम पूछा और कहा इस्लाम में नाम बदलना कुछ जरूरी नहीं, मगर मैंने हिंदुआना नाम बदलने पर इसरार किया तो उन्होंने मेरा नाम मोहम्मद अकरम रख दिया। सवाल इसके बाद क्या हुआ? जवाब ईमान कबूल करने के बाद मुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई। मैं नमाज सीखने लगा, नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाने लगा। ये बात आसपास के गांव में फैल गई। बाज मुसलमान भी डरने लगे। मैं उन मुसलमानों से कहता आप क्यों डरते हैं? पुलिस अगर मुझे मुजरिम समझती है तो मैं खुद जवाब दूंगा। जब चोर खुद नहीं डरता तो आपको क्या डर है? मैं बालिग हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जाहिल नहीं। मैंने सोच समझ कर सारे धर्मों को देखकर फैसला किया है। मेरे घर वाले मुझे सताने लगे, मुझ पर सख्तियां की गई। मेरे वालिद ने मुझे 5 दिन
5 दिन मुझे कमरे में बंद रखा। कमरे में बंद रहकर भी मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि दुनिया वाले गलत काम करके, चोरी करके जेलों में बंद हो जाते हैं और पुलिस की सख्तियां सहते हैं। मैं अपने मालिक की बहुत ही सच्ची बात के लिए अपने घर में बंद हूँ। मेरे घर वाले ही मुझे मार रहे हैं। ये सोचकर मुझे इस पिटाई और तकलीफ में अजीब मजा आता था। मैं एक रोज मौका पाकर घर से निकल गया और मरकज निजामुद्दीन जाकर चिल्ला की जमात में चला गया। वापस आकर मैं गाँव में मुसलमानों के घर रहने लगा। पूरे इलाका, खास तौर पर गाँव में बहुत हंगामा हो गया। मेरे खानदान वाले मुझे जान से मारने की सोचने लगे। मैंने अदालत में और पुलिस में जान का खतरा के लिए दरखास्त दे दी। पुलिस मुझ पर तापुर थाने में ले गई। पुलिस अफसरान ने मुझे मुलाजमत का लालच दिया कि तुम्हें दारोगा बना देंगे। मैंने कहा 2 दिन का दारोगा बनकर फिर हमेशा की दोजख की जेल और सजा से मुझे कौन बचाएगा। मुझे शादी का लालच दिया। मेरे सामने अल्लाह के सामने खड़े होने और आखिरत के घर की कामयाबी थी। मेरे अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा। एसपी सिटी ने मुझसे पूछा, तुम गाँव के अलावा कहीं दूसरी जगह भी रह सकते हो? मैंने कहा निजामुद्दीन, दिल्ली जा सकता हूँ। वो मुझे निजामुद्दीन ले गए, मगर वहाँ उन लोगों ने माजरत कर दी। पुलिस वाले बहुत गुस्सा हुए। मुझसे कहा, अब हम तुम्हारा क्या करें? मैंने कहा एक गांव फुल्त है, शायद वो लोग मुझे वहां रख लें। 2 पुलिस वाले मुझे फुल्त ले चले। वो लोग भी थक गए थे, भूखे भी थे। खतौली नहर पर पहुंचकर वो आपस में कहने लगे, इसको मार कर नहर में डाल दो, उसने हमको सता कर रखा है। मैंने कहा अगर मेरे अल्लाह ने मेरी जिंदगी लिख दी है तो सारी दुनिया भी मिलकर मुझे नहीं मार सकती। कहने लगे 40 दिन में मुसलमानों ने इसको मौलवी बनवा दिया। देर रात को फुल्त पहुंचे। मदरसा में मौलाना कलीम साहब मौजूद नहीं थे। पुलिस वालों ने मदरसा वालों से कहा कि अगर आप लिख दें कि आप इसकी हिफाजत करेंगे तो हम इसको छोड़ दें, वरना हम इसको मार कर नहर में डाल देंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे भाई इलियास साहब को और भाई सखावत को। उन्होंने लिख कर दे दिया। अल्लाह का शुक्र है अब मैं खुश खुश फुल्क में रह रहा हूँ। हमारे अबू मौलाना कलीम साहब मेरे माँ बाप हैं। वो माँ बाप से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। मुझे घर की याद भी नहीं आती। सवाल, इसके बाद आपका घर वालों से कुछ राब्ता है? जवाब, मेरे वालिद और बहुत से रिश्तेदार आते रहते हैं और मुझे अपने धर्म में वापस जाने को कहते हैं। पहले मैं उनको बहुत सख्त जवाब देता था, मगर हजरत मौलाना कलीम ने मुझे बहुत समझाया कि घर वाले तुम्हारे माँ बाप, रिश्तेदार सब बड़े हैं। उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, उनका बड़ा हक है, उनका बड़ा अदब करना चाहिए, बहुत खिदमत प्यार से उनको दोजख से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। मेरी समझ में ये बात आ गई। अब जब आते हैं तो मैं बहुत अदब करता हूँ। वो नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, उनके लिए अपने अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। सवाल, इसके अलावा और लोगों में भी आप कुछ दावत की फिक्र रखते हैं? जवाब, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में मैंने दावत का काम शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है इनमें कई लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और मुझे उम्मीद है कि और भी लोगों को मेरे अल्लाह हिदायत देंगे। सवाल, अरमगान के कारीन मुसलमान भाइयों से आप कुछ कहना चाहेंगे? जवाब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, हमारे खूनी रिश्ते के भाई बहन हैं। अगर नासमझी में नफरत और जुल्म कर रहे हैं तो हम तो नबी के मानने वाले, कुरान के मानने वाले हैं, हमको उन तक दर्द के साथ दावत देनी चाहिए। खुसूसन हमारे मुल्क में 33 करोड़ से ज्यादा दिल्लत कहलाने वाले वो लोग आबाद हैं जिनको मजहब के ठेकेदारों ने अछूत कहकर जलील किया है। इनमें काम बहुत आसान है। वो लोग अंदर से टूटे हुए हैं। अगर हम इस्लामी मसवाद से उनके दिलों को जीत सकें तो ये उन पर और उनके और अपने मुल्क पर एहसान होगा। सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह। जवाब, आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इज्जत बख्शी। मुस्तफ़ाद अज़मानामा अरमगान, अक्टूबर 2003। जनाब शेख मोहम्मद उस्मान सतेश चंद्र गोयल से एक मुलाकात। अहमद अब्बास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद उस्मान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, सेठ उस्मान साहब आप दिल्ली कब तशरीफ लाए? जवाब, मौलाना अहमद साहब आज ही सुबह आया था और रात में वापस जाना है। मौलाना साहब से मिलने को दिल कर रहा था, मैंने फ़ोन किया, मालूम हुआ कि दिल्ली में है। मौलाना ने बताया कि मुझे भी आपसे ज़रूरी काम है। मुझे पुरानी दिल्ली से कुछ माल खरीदना है। सदर और चांदनी चौक में कुछ काम हो गया है, कुछ शाम को होना है। मैंने ख्याल किया कि दोपहर में हजरत से मिल लाऊं। हजरत ने बताया कि अहमद आपसे अरमगान के लिए एक इंटरव्यू लेंगे। सवाल, आपकी अभी से मुलाकात हो गई? जवाब, जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। असल में मैं पीर और शेख की हैसियत चार्जर की सी होती है। हजरत से मिलकर ईमान की बैटरी यानी अंदर दिल की बैटरी चार्ज होती है। हदीस में भी नेक सोबत की इतनी फजीलत आई है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ही तो थी कि सहाबा सहाबा बने। सवाल, आपने बिल्कुल सच फरमाया। आपने खुद ही बताया कि अब्बी ने आपसे फरमाया है कि अहमद को अरमगान के लिए इंटरव्यू लेना है, इसी के लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। जवाब, कैसी बात कर रहे हैं? तकलीफ कैसी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि किसी दीनी दावती काम में मुझ गंदे का नाम आ जाए रोते हुए, वरना कहाँ मैं बुत परस्त और कहाँ ईमान की मुबारक दौलत। सवाल, आप अपना खानदानी तारुफ कराइए। जवाब, मगरबी यूपी के मशहूर जिला बुलंदशहर में जो राजा बरन की
راجدھانی تھی، وہاں میری پیدائش ایک تاجر لالا خاندان میں ہوئی۔ میرے والد کی ایک کرانہ کی بڑی دکان تھی۔ میرا نام انہوں نے ستیش چندر گوئل رکھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میں نے کاروبار سنبھالا، بھائی کو ایک تھوک تجارت کا کاروبار کرایا۔ اللہ نے خوب کاروبار میں ترقی دی اور والد صاحب کے کاروبار کو ہم نے الحمدللہ بہت بڑھایا۔ انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی، پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکا، کاروبار سنبھالنا پڑا۔ میری شادی مظفر نگر کے ایک بڑے تاجر گھرانے میں ہوئی۔ بیوی بہت شریف خاتون ہے، وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ ہمارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 3 بچے اللہ نے دیے ہیں۔ والدہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ سوال اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جواب: ہمارا خاندان ایک مذہبی ہندو گھرانہ تھا۔ مذہبی کاموں میں ہم نے اپنے والد کو بہت خرچ کرتے ہوئے دیکھا، خصوصاً دان اور بھنڈارے میں تو بہت ہی خوشی سے خرچ کرتے تھے، اور ہم نے اس خرچ سے کاروبار بڑھتے دیکھا، تو مجھے بھی مذہبی کاموں میں خرچ کا بہت شوق ہوا، اس لیے ہندو مذہب کے علاوہ دوسرے مذہبی کاموں میں بھی خرچ کرتا۔ کہیں مسجد بنتی تو یہ سوچا کہ یہ بھی مالک کا گھر ہے، میں ضرور مسلمانوں کے نہ چاہتے ہوئے پیسے دیتا۔ ہمارے ہاں تبلیغی اجتماع ہوتا، میں ذمہ داروں کو تلاش کر کے خوشامد کر کے پیسے دے کر آتا۔ شاید اللہ کو میرا یہ کام پسند آ گیا اور میرے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا۔ سوال: ظاہر ہے کہ ہدایت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوتا ہے، مگر ذریعہ کیا ہوا اور کس طرح آپ مسلمان ہوئے، ذرا بتائیے۔